Hello students, a very good afternoon everyone. This is the beautiful world of science and technology. So we know that science is a way of knowing, a process of gaining knowledge and understanding of nature of the world. So today in this session we are going to start our new chapter. The name of the chapter is Changes Around Us. So I welcome you all for the next chapter of your syllabus. So before entering into the new chapter, we learn about which concept we discuss in the chapter. What, what are the concept we will cover from the chapter. तो एक नए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में हमें किन कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. So in this chapter we will discuss about the different kind of changes like a physical change, chemical change, reversible change, irreversible changes, man-made changes and the natural changes. इस नए चैप्टर में हमें क्या होता जो हमारे सब्सटेंस में हो, जो डेली लाइफ में जो फिजिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं, रिवर्सिबल चेंज होते हैं, इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, मैन मेड चेंजेस एंड द नेचुरल चेंजेस. तो इन कंसेप्ट के बारे में इस चैप्टर में हमें क्या है डिस्कशन कर रहे हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग each and every concept from this chapter, we learn about the basic term related to this concept. हर एक कंसेप्ट जानने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है. So let's start today's session with a basic term. आज का सेशन हम एक बेसिक टर्म के साथ क्या है स्टार्ट करते हैं. तो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स या की टर्म्स. The first one is a natural changes. Write down first one, natural changes. Natural changes. The changes that occur in nature on their own. Now see. The changes that occur in nature on their own. नेचर में जो खुद चीजें जो आप चेंज हो जाती है उसको हमें क्या कहना है तो नेचुरल चेंजेस कहना है. अंडरस्टैंड? The changes that occur in nature on their own. जो चेंजेस खुद क्या है चेंज हो जाते हैं उसको हमें क्या कहना है नेचुरल चेंजेस कहना है. On their own is called as natural changes. Number 2, now see man-made changes. Man-made changes. Now see the changes that occur due to the man's activities. So we are doing different kind of activity in our daily life. हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अलग अलग प्रकार के क्या एक्टिविटीज करते हैं. उनके कारण जो चेंजेस होते हैं उसको हमें क्या कहना है तो मैन मेड चेंजेस कहना है. द चेंजेस दैट ऑकर ड्यू टू द मैन एक्टिविटीज. इंसान के एक्टिविटीज की वजह से जो कोई भी चेंजेस होते हैं उसको हमें क्या कहना है मैन मेड एक्टिविटीज कहना है. देखिए the changes that occur due to man's activities. Changes that occur due to man's activities is called as the man-made changes. Now see reversible changes. Next one. Reversible changes. So what is the meaning of reversible changes? Changes that can be reversed when the cause of a change is removed. Yes. The changes that can be reversed. कुछ चेंज होने के बाद फिर से क्या होते हैं तो रिवर्स हो जाते हैं when the cause of the change is removed. तो उनका जो चेंज रिमूव करने के बाद एक बार फिर से वो अपने एक ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं उसको हमें क्या कहना है रिवर्सिबल चेंज कहना है. Changes that can be reversed.
changes that can be reversed. That can be reversed. Now see irreversible. Irreversible changes that cannot be reversed. ध्यान रखें, जो चेंजेस रिवर्स नहीं होते हैं उसको हमें क्या कहना हो, तो इरिवर्सिबल चेंजेस करना है. चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स. चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स. That cannot be reversed. Listen. The next one is physical change. The changes in which no new substance is formed is called as the physical changes. The changes in which no new substance is formed is called as the physical change. Next one, chemical change. The changes in which new substances is formed with the different properties. Now see. The changes in which new substances with the different properties are formed are called as the chemical change, and fast changes, the changes that occur within a second, is called as the fast change. What is the meaning of a physical change? A changes in which no new substance is formed is called as the physical change. Next one, chemical change. A changes in which a new substance is formed with the different properties is called as a chemical change. Fast change, the changes that occur within second, जो changes होते हैं immediately change हो जाते हैं, उसको हमें क्या कहना है, तो fast changes करना. कुछ ही पलों में change हो जाना, उसको हमें क्या करना है, fast changes. Write down, लिखिए physical changes. Next one now see physical changes. Physical changes. Next one. Physical changes. The changes in which no new substances are formed. No new substances are formed. Next one now see chemical changes. Chemical changes, the changes in which new substances with different properties are formed. Number 7, fast changes. Changes that occur within a few seconds. Within a few seconds is called as a fast changes. Understand? So what is the meaning of natural changes, man-made changes, reversible changes, irreversible changes, physical changes, chemical changes and the fast changes? अब तक जो हमने डिस्कशन किया है, कुछ बेसिक टर्म के बारे में हमने क्या है डिस्कशन किया है. नेचुरल चेंज बोले तो क्या, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज,
irreversible change, and natural change, man-made change, and the fast change. इसके बारे में हमने क्या है डिस्कस किया है. Understand? So these basic terms are very important for you. हर एक चैप्टर के जो बेसिक टर्म इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये समझने के बाद ही आपको चैप्टर क्या इसलिए समझ में आ जाता है. सो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी रीड केयरफुली. सभी बच्चों को क्या है बेसिक टर्म को अच्छी तरीके से क्या है याद करके रखना बहुत जरूरी है. चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर फर्स्ट गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का हमें क्या करना है इंट्रोडक्शन देना है. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. हम सभी को मालूम है चेंज जो भी होता है नेचर का क्या है नियम है. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. We see many different types of changes around us. In our life, we are seeing the different kinds of changes that is occur in our daily life. हमारे हर रोज लाइफ में क्या होता है अलग अलग प्रकार के क्या हम चेंजेस क्या है देखते हैं. If we observe things around us, we find practically everything is changing. अगर हम हर एक चीज को केयरफुली देखेंगे तो हर एक चीज का क्या होता है चेंजेस होते रहता है. So we can say that changes occur all the time and touch everything. Changes that occur every time in the nature. हर वक्त नेचर में क्या होता है चेंजेस क्या है होते रहता है. Many changes are takes place around us on their own. Who mention of a few are now seen. Many changes are taking place around us on their own. कुछ चेंजेस क्या होता है कुछ चेंजेस हो जाते हैं. उसके बारे में हमें क्या है डिस्कशन करना. टेक एग्जांपल. A plant grows and produces leaves, flowers, and fruits. Now see, a plant grows and produces leaves, fruits, and the flowers. एक जब कोई हम झाड़ लगाते हो ग्रो होता है उसको क्या है लीव्स लगते हैं, फ्रूट्स आते हैं और फ्लावर आ जाते हैं. Now see, sometimes leaves fall from the tree, changes color and dry out. कुछ समय के बाद ध्यान में रखिए झाड़ के पत्ते नीचे गिर जाते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है और उसको क्या होता है फ्रूट्स आ जाते हैं. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन wither away. Our nails grow, our hair grow, we grow taller and our weight increases as we grow. Now see our body. Our nails grow, our hair grows, our body weight grows, our height grows. तो हमारे और बॉडी के अंदर हम देखते हैं तो हमारे क्या ये है बाल बढ़ जाते हैं, हमारा वेट बढ़ जाता है, हमारी हाइट बढ़ जाती है. वाटर फ्रॉम puddles changes into vapor, day changes into night, season changes. Now the different kind of changes. Day changes into night, season changes, body changes into adult. जो कोई आप बच्चा है थोड़े बाद वो मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद क्या है कि उसको क्या है बूढ़ा हो जाना है. A chick turns into a hen, iron objects laying on damp places get rusted, full sun. There are different kinds of examples of changes that occur in our nature. ध्यान में रखिए change the law of nature. Everything changes in this beautiful world if we are observe carefully. अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्व अगर कर लेते केयरफुली तो दुनिया में हर एक चीज के तो चेंज होते रहते हैं. फॉर टेक द गुड एग्जांपल ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी में रोजमर्रा कुछ ना कुछ क्या है चेंजेस होते रहता है. जिस तरह से हमारा सिंपल एग्जांपल अपने मेड्स बढ़ जाना, बाल बढ़ जाना, हाइट बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना. अगर कोई चीज़ अगर हम आयरन की चीज़ रखते हैं तो कुछ समय बाद वो खराब हो जाती है, उसको रस्टिंग हो जाता है, झाड़ के पत्ते गिर जाना, डे का नाइट हो जाना, सीजन चेंज हो जाना, धूप काला है, फिर बरसात है, फिर ठंडी में, तो अलग अलग प्रकार के क्या नेचर में क्या है चेंजेस हो जाते हैं. इट्स द कंटिन्यूस साइकिल इन द नेचर. लिसन, तो हर एक चीज़ बदलना, बदलते रहना, एक एक नेचर की क्या होती है एक साइकिल है. लिसन, फॉर एग्जांपल तो छोटा बच्चा है कुछ समय बाद वो अडल्ट हो जाएगा, कुछ समय बाद वो क्या है बूढ़ा हो जाएगा. तो ये क्या एक नेचर की कंटिन्यूस साइकिल है. एवरीथिंग इज चेंज इन द यूनिवर्स. इसमें सब कुछ चीजें क्या है धीरे धीरे क्या हो तो चेंज होती रहती है. नाउ द फर्स्ट कंसेप्ट, चेंजेस बिकम्स नोटिसेबल ड्यू टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग. हमें चेंजेस कब होते हैं, कब नजर आता है, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं.
जब कोई किसी चीज में अगर कोई चेंज होता है तो किन कारणों की वजह से होता है, हम इसको किस तरह से नोटिस कर सकते हैं। Now see, changes become noticeable between one or more of the following. Now see, changes become noticeable due to one or more of the following. Changes become noticeable due to one or more of the following. One or more of the following. Now see, चेंजेस जो हम नोटिसेबल करते हैं किन कारणों की वजह से करते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेना है। फर्स्ट वन इज अ कंपोजिशन। नंबर फर्स्ट वन इज अ कंपोजिशन। नेक्स्ट नंबर टू इज अ फॉर्म, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। नॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है पोजीशन, शेप एंड साइज। पोजीशन, शेप एंड साइज। नेक्स्ट वन कलर, टेम्परेचर, now see any other property of matter, any other property of matter. Now see, changes become noticeable due to the following points. Now first one is a composition, form of a physical state of a substance, structure, position, shape and the size of a substance, color, टेम्परेचर एंड एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इन कारणों की वजह से हम चेंजेस को क्या तो नोटिसेबल क्या है कर सकते। लिसन नाउ सी, अब डिस्कशन कर लेंगे। चेंजेस आर नेचुरल एज वेल एज मैन मेड चेंजेस। चेंजेस सच एज द रस्टिंग एंड द सेटिंग ऑफ द सन, रेनफॉल, ब्लोइंग ऑफ द विंड, germination of the seed, these are the natural changes. Now see, changes such as rising and the setting of the sun, सन का डूबना, सन का निकलना, बारिश हो जाना और तेज हवाएं चलना, सीड्स का ग्रोथ प्लांट में कन्वर्ट हो जाना, तो दिस आर दी नेचुरल चेंजेस। ध्यान में रखिए, सूरज का उगना, शाम के टाइम डूब जाना, तेज बरसात होना, तेज हवाएं चलना, धूप गिर जाना, प्लांट्स का ग्रो हो जाना, ये कौन सी चेंजेस है? तो दिस आर दी नेचुरल चेंजेस। नाउ सी, ऑन द अदर हैंड, many changes occur due to the man's activities such as cooking food, cutting trees, making furniture from wood, construction of a house, making roads. Such changes are called as the man-made changes. Now see, cooking food and now see cutting the trees, making furniture from the wood, construction of the houses and doing other activities. So these are the examples of man-made changes. इंसान अलग अलग एक्टिविटी अपनी डेली लाइफ में करता है। झाड़ को कट करना या कुछ फर्नीचर बनाना या बिल्डिंग बनाना या कंप्यूटर वर्क कर देना, जो अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज करता है उसको हमें क्या कहना है? तो मैन मेड चेंजेस कहना है। अंडरस्टैंड? नेचुरल चेंजेस एंड द मैन मेड चेंजेस। नाउ सी, changes are favorable as well as unfavorable. Then we must. Some changes are favorable and some changes are unfavorable. Some changes are favorable to us, such as growing of crops, cooking of food, and ripening of the fruits. Some changes are favorable to us, such as growing of crops. कुछ चेंजेस क्या होते हैं बहुत फेवरेबल रहते हैं, जिस तरह से अपना ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स से, कुकिंग ऑफ फूड से, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। Some changes are not favorable to us, such as rusting of iron, baking of food. जो हमारे आयरन का गंज खा जाना और हमारा पकाए सो खाना खराब हो जाना। We like to make favorable changes faster and
अनफेवरेबल और हार्मफुल चेंजेस आइदर स्टॉप और स्लो डाउन। नाउ सी, जो अपने फेवरेबल चेंजेस है उसको हम क्या है फास्ट करना चाहते हैं, और अनफेवरेबल जो चेंजेस है उसको हम क्या है स्टॉप करना चाहते हैं। अंडरस्टैंड? फेवरेबल चेंजेस एंड द अनफेवरेबल चेंजेस। नाउ सी, चेंजेस आर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल। नाउ सी, कुछ चेंजेस क्या है रिवर्सिबल है और कुछ चेंजेस क्या हो तो इरिवर्सिबल। तो कौन से आप ये डिस्कशन करें। A balloon becomes larger when we inflate it with air. When inflate the air in the balloon, balloons becomes larger. जब हम किसी बलून में एयर को ट्रांसफर करते हैं, उसको करने के बाद बलून का साइज क्या हो तो बढ़ जाता है। It comes to its original shape when the air is let out. When the air is let out from the balloon, balloons come in the original shape. Water on cooling changes into ice, and ice on heating changes into water. In both these changes, we can see that changes gets reversed when the cause of the changes is removed. Now, these are the examples of reversible changes. Understand? ध्यान में रखिए, when we apply the heat and ice, ice को heat apply करने के बाद बर्फ का क्या है पानी बन जाता है। पानी को अगर हम ज़्यादा heat apply करेंगे तो पानी की क्या होती है वाफ रेडी हो जाएगी, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने बलून एग्जाम्पल देखा है। बलून में एयर डालने के बाद बलून का साइज बढ़ जाता है, जब उसकी हवा छोड़ देंगे तो क्या अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो उसको हमें क्या कहना है रिवर्सिबल चेंजेस करना है। इट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंजेस। नाउ सी नेक्स्ट वन, there are also changes where the substances cannot be brought back their original state. Now see, there are also changes where the substances are not came into the या back into the original state. एक बार अगर उनका स्टेट चेंज होता है तो दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ जाते। जिस तरह से नाउ सी, an inflated balloon if picked it busted, this busted balloon cannot be brought back to its original shape. अगर हम किसी बलून को अगर जला देते हैं, उसको अगर खराब कर देते हैं तो वह फिर से क्या होगा उसके ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता। So wheat flour is made into the dough and chapatis are made by the baking on tawa. जब हम किसी पीठ से गेहूं के पीठ से चपाती बनाते हैं, चपाती बनाने के बाद फिर से हम दोबारा उसका क्या होता है पीठ बना नहीं सकते, उसका फ्लोर नहीं बना सकते। जब हम रोटी बनाते हैं, अंडरस्टैंड, रोटी से हम पहले क्या करेंगे डफ रेडी करेंगे। जो अपना ये रहता है रोटी किससे बनती है तो उसके फ्लोर से बनती है। तो उसको डफ बनाने के बाद अगर रोटी बनने के बाद फिर से अगर उसका फ्लोर बनाना है तो बहुत बड़ा मुश्किल होता है, वो रिवर्सिबल। तो चपाती कैनॉट बी ब्रॉट बैक टू द ओरिजिनल डफ एंड डफ इनटू द फ्लोर। उसको हम क्या है चपाती को दोबारा उसका क्या है तो फ्लोर क्या है बना नहीं सकते। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ irreversible changes. Now see physical change as well as a chemical change. ध्यान में रखिए, changes in which no new substance is formed is called as the physical change. Example, breaking of a glass, freezing of water, melting of ice cream, and turning of paper. Now see, changes in which new substance is not formed. जिस चेंज में एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है उसको हमें क्या कहना है तो क्या कहना है फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम को जब हम मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद से कुछ नई चीज़ हमें मिलती है नहीं मिलती। जब अपने बुक्स के पेज को फाड़ लेंगे तो हमें कुछ तो नई चीज़ मिलती है नहीं मिलती। अंडरस्टैंड? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को जब फ्रीज करेंगे उसको हमें नहीं मिलता है। नाउ सी, changes in which new substances with different properties are found are called as the chemical changes. जिस चेंजेस में एक नए सब्सटेंस हमें मिल जाते हैं उसको हमें क्या कहना है बोलो तो केमिकल चेंजेस कहना। फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, उसका सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं कुकिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट वन बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, बर्निंग ऑफ अ कैंडल। कोई चीज़ जल जाती है या अपना जब कैंडल बर्न होता है तब उसका क्या होता है हमें क्या है कुछ तो कुछ नया। जब कैंडल को बर्न करेंगे तो हमें क्या है लाइट मिल जाती है। जब हम किसी की फूड को अगर कुक करेंगे, कुक करने का उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज होता है, एक नई चीज़ हमें मिल जाती है। Listen, these are the examples of the chemical changes. Now see, changes are fast as well as slow. कुछ चेंजेस बहुत फास्ट रहते हैं, कुछ चेंजेस बहुत स्लो रहते हैं। चेंजेस दैट occur within a few seconds are called as the fast changes. जो चेंजेस विदिन सेकेंड में चेंज होते हैं वैसे चेंजेस को हमें क्या कहना है तो फास्ट चेंज। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग
कभी कभी भी हम पेट्रोल को अगर जाल लगाते हैं तो कुछ ही सेकंड में उसको क्या है आग पकड़ लेते हैं, कंप्लीट वो जल जाता है। डिसॉल्व सॉल्ट इन द वाटर। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ी सी नमक क्या है, थोड़ी शक्कर डालिए, इतने सेकंड में क्या हो, जो नमक और शुगर है वो क्या है पानी में क्या हो तो डिसॉल्व हो जाता है। चेंजेस that takes long time to occur, a few minutes, hour, months, years are called as slow change. जो चेंजेस चेंज होने के लिए 2 दिन, 2 साल, 10 साल या 20 साल ऐसा टाइम लेते हैं, उसको हमें क्या कहना है, स्लो चेंजेस का। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ एग, एक मुर्गी का अंडा अगर हमें बॉइल करना है तो लगभग क्या होगा तो 1 घंटा ठंडा पड़ता है। नेक्स्ट वन, चेंज ऑफ डे इनटू नाइट। अंडरस्टैंड, डे का नाइट में चेंज होने के लिए कितना टाइम लगता है, 12 आवर्स लगते हैं। नेक्स्ट नाउ, ग्रोइंग अप अ चाइल्ड इनटू एन एडल्ट, एक नन्हा सा बच्चा एक एडल्ट बनने के लिए कम से कम 17-18 साल लगते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब हमारा आयरन है लोखंड खराब होने के लिए उसको क्या होता है टाइम क्या है लग सकता है। अंडरस्टैंड, दिस आर द फास्ट चेंजेस एंड द स्लो चेंजेस। ओके, let's stop here. We will continue on the next session. Stay safe, stay indoors from Municipal Public School, Aura, Shachini.